امام عالی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب آپ کربلا میں پہنچے، خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ ابن زیاد کی طرف سے حر کو حکم دیا گیا کہ قافلہ اہل بیت کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے جاؤ جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ اس حکم کے بعد حر نے مزاحمت کی۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ قافلہ اہل بیت اپنے آخری مستقر یعنی نینوا کے میدان کرب و بلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ زہیر بن قیس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے، اس دستہ کے بعد جو فوجیں آئیں گی ہم ان کے ساتھ لڑ نہ سکیں گے۔ لیکن اس مجسم حجابی شرافت و اثار نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کروں گا۔ محرم 61 ہجری کو عمرو بن سعد 4000 فوج کے ساتھ آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عمرو بن سعد نے قرہ بن سعد حنظلی کو ملاقات کے لیے بھیجا تو سیدنا حسین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر میرا آنا تم کو پسند نہ ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیادہ کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس حکم پر ابن سعد نے 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لیے متعین کر دیا۔ اس دستہ نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔ عبداللہ بن ابو حسین شامی نے سیدنا حسین سے مخاطب ہو کر کہا، حسین، پانی دیکھتے ہو کیسا آسمان کے جگر کی طرح جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ جب لشکر حسین اپنے حقیدی پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت حسین اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس بن علی 20 سواروں اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ گئے اور 500 شامیوں کا مقابلہ کر کے پانی کی مشقیں لے آئے۔ رات کے وقت ابن سعد اور سیدنا حسین کے درمیان بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 تجویزیں پیش کیں۔ اول یہ کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، دوم واپس جانے کی اجازت دی جائے، سوم کسی سرحدی مقام پر بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد نے آپ کی بات کو پسند کیا اور عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمہیں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو بات پسند کریں وہ مجھے قبول ہے۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذی الجوش نامی ملعون و مردود بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔ چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی خوشامدانہ بات سے دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا، ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، یعنی وہ میرے پاس تحفہ میں حاضر ہو اور میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیجوں۔ اسی دوران ابن زیاد کا دوسرا حکم پہنچا کہ تم حسین شیخ کے سفارشی بنتے ہو، انہیں ڈھیل دیتے ہو، اگر وہ میرا حکم نہیں مانتے تو حملہ کر کے میدان صاف کر دو، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو فوج کی کمان ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد 9 محرم کو عصر کے وقت اس نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین شیخ نے فرمایا کہ میں نماز و دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت
हज़रत हुसैन ने अपने साथियों को एक दर्दनाक खुतबा दिया। आपने फरमाया, अल्लाह ही तेरा शुक्र है कि तूने हमारे घराने को नबुव्वत से मुशर्रफ फरमाया और दीन की समझ और कुरान का फहम अता फरमाया। लोगों, मैं नहीं जानता कि आज रोए ज़मीन पर मेरे साथियों से अफजल और बेहतर लोग भी मौजूद हैं, या मेरे अहले बैत से ज़्यादा हमदर्दो गमगसार किसी के अहले बैत है। ऐ लोगों, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। कल मेरा और उनका फैसला हो जाएगा। गौर व फिक्र के बाद मेरी राय है कि रात के अंधेरे में तुम सब खामोशी से निकल जाओ और मेरे अहले बैत को साथ ले जाओ। मैं खुशी से तुम्हें रुखसत करता हूँ, मुझे कोई शिकायत ना होगी। ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं और मेरी जान लेकर तुमसे गाफिल हो जाएंगे। हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज से अहले बैत फ़रत बेकरारी से तड़प उठे और सब ने बिलित्तिफ़ाक़ आपसे वफ़ादारी और जानिसारी का अहद किया। जब वफ़ादारों की गर्मजोशियाँ ख़त्म हुई तो नमाज के लिए सफ़े आरास्ता की गई। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा सारी रात नमाज, इस्तिग़फ़ार, तलावत कुरान, दुआ और तज़र्रो में मशगूल रहे और दुश्मन के तैग़ बकफ सवार रात भर लश्कर हुसैन के घर चक्कर लगाते रहे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के दिन नमाज फ़जर के बाद अमरो बिन साद 4000 सवारों को लेकर निकला। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपने असहाब की सफ़ें कायम की। लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम महज गिनती के सवारों और चंद पैदल अफराद पर मुश्तमिल था। जब दुश्मन की फ़ौज ने तेश कदमी की तो उस मुजस्समे ईसार व कुर्बानी और सब्र व इस्तिकामत के पैकर ने उनके सामने बेआवाज़ बुलंद मंदरजा ज़ेल खुतबा इरशाद फरमाया। लोगों, मेरा हसब नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गरिबानों में नज़र डालो और अपने ज़मीर का मुहासिबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझे कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा, उनके चचेरे भाई अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद नहीं हूँ? क्या सैयदे शहदा हमज़ा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जुला जनाहीन जाफ़र तैयार मेरे चचा नहीं? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे और मेरे भाई के हक़ में ये फरमाते हुए नहीं सुना? सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जवानाने जन्नत के सरदार। अगर मेरा बयान सच्चा है, और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने से लेकर अब तक झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम्हें बरहना तलवारों से मेरा मुकाबला करना चाहिए? क्या ये बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती? वल्लाह इस वक्त रवे ज़मीन पर बजुज़ मेरे किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं। मैं तुम्हारे नबी का बिला वास्ता नवासा हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए शहीद करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? आपने बार बार पूछा मगर किसी ने जवाब ना दिया। फिर आपने बड़े बड़े कूफियों को नाम लेकर कर पुकारना शुरू किया। ए शैत बिन रबिया, ए हज्जार बिन बजर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस। क्या तुमने मुझे नहीं लिखा था कि फल पक गए, जमीन सरसब्ज हो गई, नहरें उबल पड़ी? अगर आप आएंगे तो अपनी जरार फौज के पास आएंगे, सो जल्द आ जाइए। इस पर उन लोगों ने इनकार किया तो आपने बुलंद आवाज कहा, वल्लाह तुम ही ने लिखा था। आखिर में आपने कहा, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ दो, मैं यहां से वापस चला जाता हूं। कैस बिन अशस ने कहा, आप अपने आप को अपने अमजादों के हवाले कर दें। इसके जवाब में आपने फरमाया, वल्लाह मैं जिल्लत के साथ कभी अपने आप को उनके हवाले नहीं करूंगा। जिस वक्त इब्ने साद ने फौज को हरकत दी तो हुर उनसे काटकर अलहदा होने लगा, तो मुहाजिर बिन औस ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी हालत मुश्तबा मालूम होती है। हुर ने संजीदगी से जवाब दिया, खुदा की कसम मैं जन्नत या दोज़ख का इंतखाब कर रहा हूं।
मैंने जन्नत मुंतखब कर ली है। ये कहा और घोड़े को एड़ लगा लश्कर हुसैन में पहुंच गया और निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से माफ़ी का खास्तगार हुआ। आपने उसे माफ़ फरमा दिया। इस वाक़या के बाद अमरो बिन साद ने कमान उठाई और लश्कर हुसैन की तरफ ये कहकर तीर फेंका कि गवाह रहो, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। मुख्तसर सी मुबारज़त तलबी के बाद अमरो बिन साद की फौज लश्कर हुसैन रदी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़ी। हर तरफ जंग का मैदान गर्म हो गया और खून के फव्वारे उबलने लगे। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शेर दिल सिपाही जिस तरफ रुख करते सफ़ों को उलट देते थे, मगर कसीर तादाद दुश्मन जरा सी देर में फिर हुजूम कराता था। चंद घंटों में लश्कर हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के बड़े बड़े नामवर बहादुर मुस्लिम बिन औसिजा, हुर और हबीब बिन मुजाहिर शहीद हो गए। जब दुश्मन के सिपाही सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के करीब पहुंचे तो नमाज का वक्त करीब था। आपने अबू थमामा से फरमाया, दुश्मनों से कहो कि हमें नमाज की मोहलत दे, मगर दुश्मन ने यह दरखास्त मंजूर न की और लड़ाई बददस्तूर जारी रही। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सब रुफ़क़ा यके बाद दीगरे शहीद हो चुके तो बनी हाशिम ख़ानदान नबूवत की बारी आई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि इस ख़ानदान से मैं आगाज़ करूं। तलवार उठाई, लेकिन हज़रत अली अकबर मैदान में आ गए। अर्ज़ करने लगे, अबा जान, बेटा आपका जवान है और जवान बेटों के होते हुए बाप को ऐसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं। मैदान में पहुँचे, जंग शुरू हुई। आपकी तलवार जिस सिमत उठती यजीदी फ़ौज के टकरे उड़ा देती। आपने उन्हें गाजर मौली की तरह काट कर रख दिया। फिर आपका घोड़ा जख्मी हो गया। हैदरी खून और हुसैनी शुजात ने यजीदी लश्कर को मुसीबत और मशक्क़त में डाल दिया और उनके परखचे उड़ा दिए। इमाम हुसैन अलाई चाहते थे कि अपने जवान बेटे को, शबाब के माह कामिल को, हसन के माह तमाम को अपनी आंखों से लड़ता हुआ देखे, लेकिन मैदान करबो बला की गर्द ने उनको छुपा लिया था। कुछ खबर न थी कि वो कहाँ है और उन पर क्या बीत रही है। बस इतना अंदाज़ा होता था कि जिस सिमत यजीदी लश्कर की भीड़ें भागतीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत के लोग समझ लेते कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लाडला बेटा इस सिमत जा रहा है। ये अली हैदर करार का पोता और हज़रत मोहम्मद अलाई का नवासा देर तक यजीदियों को वासिल जहन्नम करता रहा। प्यास की शिद्दत ने आग घेरा, जिस्म पर बीसियों जख्म लग गए। पानी का एक घूंट भरकर दोबारा ताज़ा दम होने के लिए आए तो अर्ज़ किया, अबा जान, अगर पानी का एक घूंट मिल जाए तो फिर ताज़ा दम होकर हमला करो। फरमाया, अली अकबर, पानी तो मयस्सर नहीं, लेकिन अपनी सूखी हुई ज़बान तेरे मुंह में डाल सकता हो। हज़रत अली अकबर ने इमाम आली मकाम की सोखी हुई ज़बान चखी और उससे फिर ताज़ा दम होकर मैदान में पहुंचे। देर तक लड़ने के बाद बेअंदाज़ा जख्म खाकर जमीन पर गिर पड़े। एक नेज़ा आपके सीना अक़दस में पैवस्त हो गया। अचानक ज़बान से आवाज़ आई, या अबदा, ए अबाजान। इमाम हुसैन बेसाख्ता दौड़ पड़े, जाकर अपने बेटे को गोद में लेकर उठा लिया। बेटा एक अजीब अंदाज से अपने बाप को तक रहा है। अर्ज़ की, अबाजान, अगर आप नेज़े का ये फल जिस्म से निकाल दे तो मैं एक बार फिर मैदान में जाने के लिए तैयार हूं। आपका बेटा दुश्मन की कसरत के बावजूद हिम्मत हारने वाला नहीं। इमाम हुसैन ने गोद में जवान बेटे को, इस माह तमाम को, इस हुस्न के पैकर को लिया। सर से पांव तक जिस्म जख्मों से चोर था। आपने नेज़े का फल निकाला, खून का फव्वारा उबल पड़ा। सबसे पहले अली अकबर दाका शहीद हुए। हज़रत हुसैन ने अली अकबर की लाश उठाई और खैमा के पास रख दी। इसके बाद हज़रत हुसैन मैदान जंग से कासिम बिन हसन की लाश उठाकर खैमा के पास लाए और अली अकबर की मैयत के पहलू में लिटा दिया।
अहले बैत के रोने की आवाज आपको सुनाई दी, तो आपने अहले बैत को मुखातब करके फरमाया, ए अहले बैत, सब्र। ए अहले बैत, सब्र करो। ए मेरे चचा की औलाद, सब्र करो। इसके बाद कोई तकलीफ ना देखोगे। जिस वक्त अब्दुल्ला बिन हसन रदियल्लाहु अन्हो अपने चचा सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हो पर दुश्मन को वार करते देखा, तो उस पैकर वफा ने लपक कर अपने हाथ पर तलवार के वार को रोका। उसका दायां बाजू शाने से कटकर जुदा हो गया। सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हो अपने नौजवान भतीजे को छाती से लगाया और फरमाया, ए भतीजे, जो मुसीबत इस वक्त तुम पर आई है, इस पर सब्र करो और सवाब के उम्मीदवार रहो। बहुत जल्द खुदा तुझे तेरे सालेह बाप दादा से मिला देगा। इसके बाद सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हो का साहबजादा अली असगर रहमतुल्लाहु अलैह जब शिद्दत प्यास से तड़पने लगा, तो आप उसको गोद में उठाकर लाए और दुश्मनों को मुखातब करके फरमाया, तुम्हें मुझसे तो अदावत हो सकती है, लेकिन इस मासूम बच्चे के साथ तुम्हें क्या दुश्मनी है? इसको तो पानी दो कि शिद्दत प्यास से दम तोड़ रहा है। इसके जवाब में दुश्मन की तरफ से एक तीर आया, जो उस बच्चे के हल्क में पेवस्त हो गया और वो मासूम वही जाबहक हो गया। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हो इस कदर होश रबा सानेहा पर भी कमाल सब्र व सकून का मुजाहिरा किया, यानी उसके खून से चलो भरकर आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, या अल्लाह, जो मुसीबत इस वक्त इस पर नाजिल है, इसको तो आसान कर। मुझे उम्मीद है कि इस मासूम बच्चे का खून तेरे नज़दीक हज़रत सालेह की ऊँटनी से कम नहीं होगा। नवासा व रसूल अफ़ज़ल्लाह का बेमिसाल सब्र व इस्तिक़लाल। जब अहले बैत एक एक करके शहीद हुए, तो हज़रत सैयद शहदा की बारी आई और दुश्मन की तलवारें नवासा रसूल के जिस्म अथर पर टूट पड़ी। आपने निहायत सब्र व इस्तिकामत से दुश्मनों के हमलों का मुकाबला किया। बेशुमार दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। तन तनहा हजारों का मुकाबला कर रहे थे। शिद्दत प्यास से जबान सूख कर काटा हो चुकी थी। 3 रोज से पानी की एक बूंद लबों तक ना पहुंची थी। ऊपर से झुलसा देने वाली धूप, नीचे से तपती हुई रेत, अरब की गर्मी, मौसम की सख्ती और बाद समूम का जोर, रेत के सर्रों की परवाज जो चिंगारियां बनकर जिस्म से लपटते थे। हजरत साद बिन वकास, फातिह ईरान का बदनहाद बेटा, हुकूमत के लालच से अंधा होकर अब खानदान रिसालत के आखिरी चराग हजरत हुसैन की शमा हयात को भी बुझाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। आपके जिस्म अथर में 13 तलवारों और नेज़ों के 80 जख्म पड़ चुके थे। तमाम बदन छलनी बना हुआ था, मगर आप फिर भी निहायत शुजात और साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। शमर बिन ज़ियल जोशन हज़रत हुसैन की पामर्दी और इस्तिकामत देखकर बहुत हैरान व सरासीमा हो गया और उसने सैयदना हुसैन की तवज्जो मैदान जंग से हटाने के लिए ये चाल चली कि फ़ौज से एक दस्ता अलहदा करके अहले बैत के ख़ैमों का मुहासरा कर लिया। उस पर आपने फरमाया, ए लोगो, शर्म करो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है या बेकसो बेकसूर औरतों से? कम बख्तो, कम अज कम मेरी जिंदगी में तो अपने घोड़ों की बागें इधर न बढ़ाओ। शमर नाबकार ने शर्मिंदा होकर खैमा अहले बैत से मुहासरा उठा लिया और हुक्म दिया कि आखिरी हिल्ला बोल दो। आखिर पूरी की पूरी फौज दरिंदों की तरह सैयदना हुसैन पर टूट पड़ी। आप सफ़ों को चीरते हुए फरात पर पहुंच गए और ये कहकर घोड़े को दरिया में डाल दिया कि मैं भी प्यासा हूं और तू भी प्यासा है। जब तक तू अपनी प्यास न बुझाएगा, मैं पानी को हाथ ना लगाऊंगा। घोड़ा पानी पी चुका तो आपने पीने के लिए पानी चलो में लिया और चाहते थे कि उससे अपना हल्क तर करें कि यक एक एक तीर सामने से आकर लब हाय मुबारक में पेवस्त हो गया।
आपने पानी हाथ से फेंक दिया, तीर खींच कर निकाला और मुंह खून से लबरेज हो गया। आप खून की कलियां करते हुए बाहर निकले और फरमाया, बारे इलाहा, तू देख रहा है कि ये लोग तेरे रसूल के नवासे पर क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। इतने में आवाज आई कि हुसैन दूर निकल गए और अहले बैत की भी खबर ना रही। ये आवाज सुनते ही सुरत से आप खैमों की तरफ पलटे। रास्ता में दुश्मनों के परे लगे खड़े थे। आप उन्हें चीरते हुए खैमों में पहुंच गए। हजरत हुसैन को मजरूह और खून में शराबूर देखकर खैमों में कहराम मच गया। आपने उन्हें सब्र की तलकीन की और बाहर निकल आए। एक तीर आपकी पेशानी पर लगा, जिससे सारा चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया। चंद लम्हों के बाद एक तीर सीने अथर में आकर पैवस्त हो गया, जिसके खींचते ही एक खून का फवारा जारी हो गया। आपने उस खून को अपने चेहरा पर मल लिया और फरमाया कि इसी हालत में अपने जिदामजद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा। ताकत जवाब दे चुकी थी। चारों तरफ से तलवारों और नेज़ों की बारिश हो रही थी। आप घोड़े पर ना संभल सके, तपती हुई रेत पर गिर पड़े। दुश्मन अगर चाहता तो आपको इससे बहुत पहले शहीद कर देता, मगर कोई शख्स नबीरे रसूल का खून अपने जिम्मे नहीं लेना चाहता था। अब शमर बिन जियल जोशन चलाया और जरा इब्ने शरीक तमीमी ने आगे बढ़कर आपके दाएं हाथ को जख्मी किया, फिर शाना पर तलवार मारी। आप जाफ से लड़खड़ाए तो सनान बिन अनस नखनी ने आगे बढ़कर नेजा मारा और आप बेहोश होकर गिर पड़े। आपके लिए जन्नतुल फिरदौस के तमाम दरवाजे खुल चुके थे। हुराने फिरदौस आपको फिरदौस के झोंकों से झांक रही थी। हामिलाने अर्श आपकी आमद के मुंतज़िर थे। सालिहीन, सिद्दीकीन और अंबियाए अलैहिमुस्सलाम की रूहें इस्तिक़बाले नवासाए सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार थी। मुलाए आला में एक शोर बरपा था। जन्नत की तज़ीं और आराइश की जा रही थी कि जवानाने जन्नत का सरदार आने वाला है। आपने वफूरे इंतशारे हवास में करवट बदली और आंख खोल कर देखा तो नमाज असर का वक्त था। फौरन सर सजदे में झुक गया और नमाज असर अदा की। उसके बाद शमर ने हुक्म दिया कि सर काट लो, मगर उस वक्त भी आपके चेहरा पर रौब व जलाल की ये कैफियत थी कि किसी को सर काटने की जरात ना हुई। शैत बिन रबी आगे बढ़ा, मगर उस पर भी हैबत और रौब तारी हो गया। उसके बाद सिनान बिन अंस आगे बढ़ा, उसकी भी यही हालत हुई। आखिर शमर दौड़कर आपके सीने अथर पर सवार हो गया और जिस्म औंधा करके सर तन से जुदा कर दिया। दुनिया ने शकावत, जुल्म और बर्बरियत के बहुत से मनाजिर देखे होंगे, लेकिन ऐसा खौफनाक सानहा ना देखा और ना देखेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्गी यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।